Good morning, student. So see, today is the revision class. So I will revise some of the previous parts and I will solve some new questions here. Okay. So let us start. See, last time I did one question, that is, I think that was 5.3. This question, solve x square plus x by root 2 plus 1 equal to 0. So last time I have solved this question. Okay, I think I made some mistakes in some parts. Let us do it again because some questions at the inquiry about this question. I think I wrote here root 2 in this question. So see, so very simple sum. What we shall do here? First to take the LCM. What is LCM? LCM is root 2. Okay. So after taking the LCM, what we shall get? This is x square plus, this is root 2x square. I think made the mistake. Root 2x square plus x plus 1 equal to 0. So if we cross multiply it, this is root 2x square plus x plus 1 equal to 0. Okay. So this is the question. So this is the original question. What is the question here? X square plus x by root 2 plus 1 equal to 0. So after that I have taken the LCM. After taking the LCM, what we are getting? Root 2 x square plus x plus 1. So this is root, and after cross multiplication, this root 2 into 0, it becomes 0. Okay. Now see. So it's the as usual sum. Here what is the value of a? Here a equal to root 2. What is the value of b? B is 1. What is the value of c? C is also 1. So after that, what I told you, you find the discriminant. Okay. So if we find the value of discriminant, what is the formula of discriminant? B square minus 4ac. So what is the value of b? B is root 2. So this is root 2 whole square. Minus 4. What is the value of a? A is root 2. And what is the value of c? This is, so this is 2 minus 4 root 2. So this is the value of the discriminant. Okay. Now see, actually when we shall apply the formula, okay, so this term will be inside the root over sign, and this is a negative number. Negative number or not? Because this 2 is less than 4 root 2. Because the value of 2 is more than 1. So this is 4 into 1 point something, that is more than 4. So 2 minus 4.1 is what? Negative number. So if that means inside the root over we shall put a negative number. So I already told कि अगर रूट ओवर का अंदर में कोई भी नंबर अगर निगेटिव होता है, सो दैट इज ए इमेजिनरी नंबर, है कि नहीं? सो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा? ये रूट ओवर का अंदर में होगा. सो अगर ये रूट ओवर का अंदर में हो गया, सो ये एक नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर होगा. और इनसाइड द रूट ओवर एनी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर. सो यहाँ से अगर सिंस ये नंबर जो है इमेजिनरी है, तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ? इसको इमेजिनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ. सो लेट अस टेक माइनस कॉमन. अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा? माइनस अगर कॉमन ले लिया, सो दिस इज 4 रूट 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? सो इन दिस माइनस मीन्स व्हाट? इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू 4 रूट 2 माइनस 2. ओके. सो माइनस 1 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 का जगह में हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं. वी कैन राइट आई स्क्वायर. सो दिस इज 4 रूट 2 minus 2. Okay. Now you find the value of x. So what is the value of x? Minus b plus minus root over d by twice a. So minus b plus minus root over d by twice a. So what is the value of minus b? B is minus 1. B is 1 plus minus, put the value of d. यहाँ पे d का value put कर दो, ये d का value है. So this is I square. This is 4 root 2 minus 2 by twice a, 2 into 1. ठीक है. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर अगर बाहर में आ गया तो सिर्फ आई हो जाएगा. सो दिस इज 4 रूट ओवर 2 माइनस 2 बाई ट्वाइस ए. हम लोग सम को यहाँ पे रख सकते हैं. ठीक है. वी कैन की नहीं, ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू रूट 2 था शायद. ए का वैल्यू था रूट 2.
ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। सो दिस इज द आंसर, वी कैन कंप्लीट द सम हियर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जस्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अभी देखो कुछ स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी किया लास्ट टाइम पे कि किताब में ऐसा दिया रहता है, इसका मतलब है माइनस साइन। ऐसा अगर दिया रहेगा किताब में, तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट दिस माइनस साइन, इट इंडिकेट्स द माइनस साइन। ठीक है, इसका मतलब है नेगेटिव साइन। अभी देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्या होगा, इफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई is equal to whole to the power m equal to 1, find the least value of m। ये मिसलेनियस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई होल टू द पावर m इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। अभी देखो इसका मतलब क्या है, इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई होल टू द पावर m इक्वल टू 1 फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोग को सिर्फ m निकालने के लिए नहीं दिया, क्या दिया, m का लीस्ट वैल्यू निकालने दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, सी सपोज हम लोगों ने एक सम किया, करने के बाद m का बहुत सारा वैल्यू आया, m का ये वैल्यू आया -1 0 3 8। तो क्वेश्चन पे हम लोग को दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए दिया। सो लीस्ट वैल्यू मतलब m का जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको निकालने दिया, m का वैल्यू निकालने नहीं दिया। सो यहाँ पे m का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -1। सो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -1। सो दिस इज आंसर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन से हम लोग को m का जो लीस्ट वैल्यू है उस लीस्ट वैल्यू को निकालना है। ठीक है, सो देखता है कैसे होगा m का लीस्ट वैल्यू। सो देखो सी, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। ओके, सो लिखो इफ, सो लिखो गिवन, पहले यहाँ पे लिखो गिवन, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन what is given, this one is given to be equal to 1। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसको रेशनलाइज कर दो। ऑलरेडी मैंने रेशनलाइज सिखा दिया था। रेशनलाइज का मतलब क्या है, रेशनलाइज का मतलब है नीचे में जो नंबर है उस नीचे का नंबर का ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आई लिखो, 1 प्लस आई लिखा। ठीक है, इसका ऑपोजिट साइन क्या है, 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई लिख दिया। इस नंबर से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस आई है। ठीक है, होल टू द पावर m इक्वल टू 1 आ गया। अभी देखो ऊपर में क्या आया, सपोज ये एंटायर टर्म जो है दिस इज a, दिस इज a, सो a इंटू a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस आई होल स्क्वायर। ठीक है, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, अभी देखो ऊपर में क्या, ऊपर में जो वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे तुम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल टू द पावर n। ठीक है, अभी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, आई स्क्वायर का वैल्यू था -1। सो आई स्क्वायर का जगह में -1 पुट कर दो। सो आई स्क्वायर का जगह में अगर हम लोग -1 को पुट कर देते हैं, इफ वी पुट आई स्क्वायर का जगह में यहाँ पे भी हम लोग -1 पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 प्लस ट्वाइस आई, और यहाँ पे माइनस आई आ गया। ठीक है,
और नीचे कितना है 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल टू द पावर m इक्वल टू 1। सो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, दिस इज ट्वाइस i बाय 2 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। सो 2 कैंसिल हो गया। सो हम लोग के पास क्या हो गया, क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ गया i टू द पावर n। तो क्वेश्चन पे हम लोगों के पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। दैट मीन्स m का जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको निकालना है। अभी देखो m जो है इसका जगह में अगर हम लोग 4 पुट कर देंगे, i टू द पावर 4, i टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर m का जगह में हम लोग 8 पुट करते हैं, 8 पुट करने से i टू द पावर 8, i टू द पावर 8 का वैल्यू भी 1 होगा। क्योंकि i टू द पावर 8 क्यों 1 होगा, देखो i टू द पावर 8, ये देखो i, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं i टू द पावर 4 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू है 1, सो 1 स्क्वायर इज 1। सिमिलरली i टू द पावर 12, i टू द पावर 12 का वैल्यू कितना होगा, i टू द पावर 4 होल क्यूब, 3 4 12, सो इसका वैल्यू कितना है 1, सो 1 क्यूब इज अगेन 1। सो यहाँ पे सेम अगर हम लोग 16 पुट करते हैं तभी भी उसका वैल्यू 1 आएगा। तो m का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, m का वैल्यू 4 भी हो सकता है। अगर m का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 4 डाल दिया तब आंसर 1 होगा। m का वैल्यू अगर हम लोग 8 डाल दिया तभी भी आंसर 1 होगा। m का वैल्यू अगर हम लोग 12 डाल दिया तभी भी आंसर 1 होगा। m का वैल्यू अगर 16 डाल दिया तभी भी आंसर 1 होगा। m का वैल्यू अगर 20 डाल दिया तभी भी आंसर 1 होगा। सो देयर आर मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। सो यहाँ पे जितना भी m का वैल्यूज आया उसको लिख दो। यहाँ पे हम लोग को m का बहुत सारा वैल्यू मिला, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ, कब होगा, जब m का वैल्यू 4 होगा, जब m का वैल्यू 8 होगा, जब m का वैल्यू 12 होगा, जब m का वैल्यू 16 होगा, ऐसा करते जाता रहेगा। फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ m हम लोगों का राइट हैंड साइड और हम लोगों को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है उसका इक्वल वैल्यू मिलेगा। सो यहाँ पे सबसे छोटा वाला m का सबसे छोटा वाला वैल्यू कितना है, m का जो सबसे छोटा वैल्यू है दैट इज 4। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m, लीस्ट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना आ गया 4। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर तुम लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली ये सम तुम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो और एक सम मैं करता हूँ, वो भी एक किताब का ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है देखो। सो अभी जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने आएंगे वो जितना भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन पे क्या होगा, सब क्वेश्चन का तरीका सेम होगा। दैट मीन्स क्योंकि थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका, ठीक है। अभी जो आगे प्रीवियस जो थ्योरीज है उस थ्योरी के अप्लाई करके हम लोग यहाँ से दूसरा सम कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस आई बी बाई a माइनस आई बी इक्वल टू x प्लस आई वाई, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको प्रूव करते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये गिवन पार्ट है, इस गिवन पार्ट से हम लोग को ये पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है। सो इसको करता हूँ, इफ a प्लस आई बी बाई a माइनस आई बी इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। सो पहले लिखो गिवन, गिवन व्हाट इज द गिवन पार्ट, दिस वन, इसको 1 से मार्क कर दो। अभी नाउ टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, इसका बोथ साइड में कॉन्जुगेट ले लेता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड में कॉन्जुगेट ले लेता हूं, देखो यहाँ पे भी बार आ जाएगा, यहाँ पे भी बार, यहाँ पे भी बार। सो ये ऐसा हो जाएगा a प्लस आई बी बार बाय a माइनस आई बी बार इक्वल टू x प्लस आई वाई बार। सब जगह में मैंने बार ले लिया, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स।
सो इसका ऊपर बार लेने से क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a माइनस आई बी, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने अगर यहाँ पे भी हम लोग अगर बार ले लेते हैं तो यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a प्लस आई बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, इट इज 2। नाउ मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 और 2 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 1 इंटू 2, सो दिस इज a प्लस आई बी बाय a माइनस आई बी। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इंटू इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस आई बी बाय a प्लस आई बी। ठीक है, अभी x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई मल्टीप्लाई करो, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अभी देखो ये कैंसिल हो गया, ये पार्ट एक पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया और यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर। सो दिस इज 1, दिस इज एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी आई स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 1 माइनस 1 था। सो आई स्क्वायर का जगह में हम लोग माइनस 1 डाल सकते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1, सो दिस इज 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव्ड। सो इन दिस वे आल्सो वी कैन प्रूव द सम्स। ठीक है, तो कुछ सम्स क्या होता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द सम्स कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग अगर बोथ साइड में इसको बार ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आज मैं कुछ नया होमवर्क नहीं देता हूँ, तुम लोग जो पुराना चीज़ है पुराना चीज़ को रिविजन करते रहो। ठीक है, तब मैं जाके क्या कर पाऊंगा, जो नया चीज़ है मंडे में नया चीज़ शुरू कर पाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।